welcome. Let's continue our math first, third chapter, that is polynomials, and practice set 3.1. First example, that is state whether the given algebraic expressions are polynomials and justify. So you know the definition of polynomials means this type of example or which algebraic expression is polynomials. So if the powers of variables are whole number, मीन्स जो वेरिएबल्स है उनके जो पावर इंडेक्स है अगर वो होल नंबर है तो उसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे ये अपॉन में है वेरिएबल, अगर इससे मैंने ऊपर लिया ये होगा y प्लस y रेज टू -1, क्योंकि लॉज ऑफ इंडाइसिस में हमने देखा है कि एनी नंबर रेज टू -1 दैट इज 1/a। तो इस तरह से, तो अब यहाँ पे जो इस y का वेरिएबल है वो निगेटिव है, मींस होल नंबर है नहीं, होल नंबर मींस 0 1 2 3 होने चाहिए। अगर नेगेटिव है मींस वो इंटीजर होगा, तो उसे हम होल नंबर नहीं कहेंगे। और पॉलिनोमियल होने के लिए पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, तो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। रीजन because here power of variable y is not a whole number, क्योंकि होल नंबर नहीं है। And then see this second example, again see this variable is x and it is in square root. So if we write this in the form of index, so 5 into x, and this means 1/2 in square root, because insert be same, means in square root means order is 2, and if you write in index form it is x raised to 1/2. So this 1/2 is not a whole number, therefore this is not a polynomial. It is algebraic expression but not a polynomial. तो यहाँ पे जो ये स्क्वायर रूट में तो तीन चीजें बताई थी, वेरिएबल अपॉन में ना हो, उसके बाद स्क्वायर रूट में ना हो, वेरिएबल की पावर नेगेटिव ना हो। अगर नेगेटिव होगी, स्क्वायर रूट में होगा, अपॉन में होगा, तो उसके पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। पहले वीडियो में हमने पॉलिनोमियल पहचाना और सिर्फ पॉलिनोमियल के एग्जांपल ही लिए, तो आप अगर है तो इसका फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हो। तब यहाँ पे फिर से क्या होगा फिर, तो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। अगेन सेम रीजन, बिकॉज हियर पावर ऑफ वेरिएबल x is not a whole number. Let's see this question number 3. In 3 there is no problem, variable is x and power is whole number, so we say it is a polynomial. So we write it is a polynomial because the power of variable x is a whole number. Let's see this question number 4. Here variable is yum, and see here yum raised to -2 is given. So what about this -2? So -2 is not a whole number. So again same reason we say here it is not a polynomial because here the power of variable yum is not a whole number. Let's see this question number 5. So this is constant polynomial. So it is constant polynomial, so no doubt about this. So we say it is a polynomial. अब किसी को प्रश्न आया होगा, क्वेश्चन आया होगा कि पॉलिनोमियल क्यों नहीं या क्यों है,
तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 into x raised to 0. So you know any number raised to 0 that is 1 and 10 into 1 10. तो यहाँ पे जो इस पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल उसकी डिग्री क्या होती है 0 होती है, क्योंकि उसको हम इस टाइप में अगर लिखते हैं तो वेरिएबल यूज किया है x और उसकी डिग्री क्या है 0, जिसकी वैल्यू होती है 1 और 1 into 10 10. So it is a polynomial. So here if you write region, so because here degree is 0 and 0 is a whole number and 0 is whole number. Therefore, this 10 is a polynomial. See, second example, question is write the coefficient of m cube in each of the given polynomial. So, first example, m raised to 3 means m cube. So, student, what is the coefficient of this m cube? अब यहाँ पे कोएफिशिएंट मींस किसी नंबर से उस वेरिएबल को m क्यूब को मल्टीप्लाई किया गया होगा वो नंबर. तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मींस यहाँ पे 1 into m क्यूब है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया 1. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ m cube is 1. Similarly, in second example, see where is m cube, and this minus root 3 is the coefficient. So, student, it is a polynomial because variable is m and its power is whole number. This root 3 is a coefficient. root 3 से इस m क्यूब को क्या किया है मल्टीप्लाई किया है, और हमें किसका कोएफिशिएंट पूछा है m क्यूब का. m क्यूब का कोएफिशिएंट किससे मल्टीप्लाई है माइनस रूट 3 से. तो आंसर क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब is minus root 3. Similarly, see in this third example, so here m cube is given and this is coefficient. So answer is minus 2 upon 3. So we write here coefficient of m cube is minus 2 upon 3, क्योंकि इस m क्यूब को माइनस 2 अपॉन 3 से क्या किया है मल्टीप्लाई किया है. तो ये इनके क्या हो जाते हैं कोएफिशिएंट. m स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस 2 है, m का कोएफिशिएंट 7 है और ये कांस्टेंट नंबर है. तो ऐसे कोएफिशिएंट हमें ढूंढते आना चाहिए. देन क्वेश्चन नंबर 3. हियर क्वेश्चन इज राइट द पॉलिनोमियल्स इन x using the given information. So here we use variable x. So see first example, here it is given monomial with degree 7. अब डिग्री भी हमने देख लिया है कि डिग्री मीन उसका एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है हमने कि डिग्री कैसे पहचानने का. तो डिग्री क्या होगी एक सिंगल वेरिएबल की डिग्री जो हाईएस्ट पावर होगा वो. अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं तो उनका सम करके उनको हम लोग प्लस करके जो प्लस ज्यादा होगा वो उसकी डिग्री होती है. सो हियर यू हैव टू राइट मोनोनोमियल विच डिग्री 7. तो ऐसा मोनोमियल लिखना है. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हमने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल 3 टाइप्स भी देखे, उन्हें लिखे भी, उनके एग्जांपल्स भी बहुत सारे बनाए भी जिसमें सिर्फ मल्टीप्लाई होना चाहिए. तो यहाँ पे हमें एग्जांपल लिखना है जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 7 होनी चाहिए और वो मोनोमियल होना चाहिए. तो वेरिएबल x यूज करने को कहा है तो हम इसे x रेज़ टू 7 क्योंकि एक ही टर्म होनी चाहिए इसमें. तो ये मोनोमियल है तो x रेज़ टू 7 हो गया आंसर. देन सेकंड बाइनोमियल विथ डिग्री 35. अब बाइनोमियल्स मींस टू टर्म्स. If in polynomial there is two term, then we say it is binomial. बाइनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री कितनी है 35 है. तो डायरेक्ट यहाँ पे x रेज़ टू 35 प्लस
ए या कोई भी नंबर वहां पे लिखे तो भी टर्म हमें चाहिए, लेकिन डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। तो इसके आंसर यहाँ पे तो ये x के लिए वही होगा, लेकिन यहाँ पे हम प्लस माइनस अलग अलग लिख सकते हैं। सी ट्राइनोमियल विथ डिग्री 8, अब ऐसा कोई ट्राइनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 8 हो, 3 टर्म हो और उसकी डिग्री 8 और x वेरिएबल यूज करना है। तो x रेज़ टू 8 माइनस 7x क्यूब प्लस यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, हो गया 1 2 3 ट्राइनोमियल और उसका हायर पावर 8, तो उसकी डिग्री 8 हो गई। तो इस टाइप से आप अपने मन से दूसरे और एग्जांपल्स लिखने, जैसे यहाँ पे और लिखना होगा तो हम लोग दूसरा यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 10x रेज़ टू 8 माइनस 5x, यहाँ 5x यहाँ पे क्यूब भी कर सकते हो आप। तो 1 2 3 3 टर्म हुए मींस ट्राइनोमियल हुआ और हायर पावर जो उसकी डिग्री 8 हुई, मींस ऐसे अलग अलग क्वेश्चन क्या हो सकते हैं आप बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ, मींस इस तरह से और सारे क्वेश्चन आपको बनाते आए।